Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. অনুগ্রহ পরিবার, আমরা এই ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে আরেকবার আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। আর আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরের বাক্য আপনাদের ঘরে ঘরে পৌঁছাবে। বহু মানুষ আজকে নিরাশ হয়ে বসে রয়েছে কারণ কি চার্চ বন্ধ। মগর চিন্তা মত कीजिए, দ্য ওয়ার্ড অফ গড উইল রিচ টু ইয়োর হাউসেস। আপনাদের বাড়িতে প্রভুর বাক্য গিয়ে পৌঁছাবে। আজকের প্রত্যেক জন যারা আমাদেরকে ফেসবুকে লাইভে দেখছেন, আপনাদেরকে আমরা জয় যিশু বলতে চাই। অনুগ্রহ পরিবার, আমরা আপনাদের সঙ্গে রয়েছি, আপনাদের জন্য প্রার্থনা করছি। আপনারা আমাদের জন্য প্রার্থনা করবেন। আমাদের প্রার্থনা আপনারা সুস্থ থাকবেন। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের পরিবারের কেউ করোনাতে মারা যাবে না। আমেন। হালেলুয়া। Hallelujah. আর কিছু সূচনা আপনাদেরকে বলতে চাই, ধ্যানপূর্বক ভালো করে শুনবেন। সেই সূচনা হচ্ছে, প্রত্যেক রবিবার আমরা এরকম ফেসবুক লাইভে আসব। আপনারা আপনাদের বন্ধু বান্ধব সবাইকে লিঙ্ক পাঠিয়ে দিন, যেন তারাও আমাদের সাথে এক হয়ে ঈশ্বরের বাক্যকে শুনতে পারে। আর আমরা চেষ্টা করব এই মেসেজটাকে রেকর্ড করে আপনাদের কাছে ইউটিউবে পাঠিয়ে দেওয়া, যেন পরে যদি আপনারা শুনতে চান আপনারা শুনতে পারবেন। আরেকটা বিশেষ সূচনা, আপনারা বুঝতে পারছেন যে লকডাউনের সময় সব কিছু বন্ধ রয়েছে, অধিকাংশ মানুষ অসুস্থ হয়ে রয়েছে, কিন্তু চার্চের কর্মসূচি চলছে। পাস্টাররা তাদের কাজ করছে, আপনাদের সঙ্গে পরিষেবা দিচ্ছে। সেই জন্যে আপনারা আপনাদের দশমাংশ, আপনাদের টাইথ দিতে ভুলবেন না। কারণ কি বাক্য পরিষ্কার করে বলেছে, যখন তুমি তোমার উত্তম ভেট আর দশমাংশকে প্রভু গৃহে নিয়ে আসবে, তুমি আশীর্বাদিত হবে। দেওয়ার মাধ্যম আপনারা আপনাদের লোকাল পাস্টারের হাতে দিতে পারেন, আপনারা অ্যাকাউন্টে পাঠাতে পারেন। সেই অ্যাকাউন্ট নাম্বার অনেকের কাছে রয়েছে। আর যদি না থাকে, আপনারা আপনাদের লোকাল পাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। আপনাদের ড্রিম টিম যারা লিডার রয়েছে, আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। আর আমরা বিশ্বাস করি প্রভু আপনাদের সব প্রয়োজন পূর্ণ করবে। আর একটা সূচনা ভুলবেন না, এতদিন আমরা ড্রিম টিমেরকেই মিটিংয়ে একত্রিত করতাম, কিন্তু এবার থেকে এই শুক্রবার থেকে আর বৃহস্পতিবার, এই দুটো দিন, বৃহস্পতিবার সন্ধে 8টার সময় দুর্গাপুর চার্চ, পাণ্ডবেশ্বর চার্চ, শক্তিগড় আর মেমারি চার্চের যত বিশ্বাসী বৃন্দ রয়েছে, আপনারা আমাদের সঙ্গে জুমে আসতে পারেন। আর শুক্রবার বর্ধমান, উখড়া আর লাউদোয়া চার্চের যত বিশ্বাসী বৃন্দ রয়েছে, ভাই বোনেরা রয়েছেন, আপনারা আমাদের সঙ্গে জুম মিটিংয়ে আসতে পারেন। আর এইখানে পাস্টার সরিতা আপনাদেরকে শিক্ষা দেবে বাইবেলের আমোসের পুস্তক থেকে। আজকের যা ঘটনা ঘটছে চারিপাশে, বাইবেল আমোস বহু বছর আগে এটা ভবিষ্যবাণী করে গেছিল, আর সেই ভবিষ্যবাণী একভাবে পূর্ণ হচ্ছে। আমরা এতদিন প্রার্থনায় ছিলাম যে প্রভু যিশুর আগমন খুব সন্নিকটে। মাঝখানে লকডাউন উঠে গেছিল, বহু মানুষ ভেবেছিল যে আমার হয়তো সব কিছু নর্মাল হয়ে গেছে, কিন্তু না, প্রভু খুব শীঘ্রই আসতে চলেছে। বিস্তারিত জানবার জন্যে আপনারা অবশ্যই এই শুক্রবার আর বৃহস্পতিবার 8টার সময় জুম মিটিংয়ে আমাদের সঙ্গে জয়েন করুন। আর আপনাদেরকে বিস্তারিতভাবে আমরা বলবো প্রভুর আগমন সম্বন্ধে, এই সময় আমাদের কী করণীয়। আর আপনারা ভালো থাকবেন, এটাই আমার প্রার্থনা। আসুন আমরা আজকে প্রার্থনার দ্বারা এই সভাকে শুরু করি। মঙ্গলময় ঈশ্বর, প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ। আজকের এই সুন্দর দিনে আমরা তোমার নামে একত্রিত হতে পেরেছি। প্রভুকে প্রার্থনা করি আজকের এই বার্তা প্রত্যেক জনে জনে, প্রত্যেকের হৃদয়ে পৌঁছাতে পারে, গৃহতে পৌঁছাতে পারে। যারা দুর্বল তারা বল পাক প্রভু, যারা আশাহত তারা আশা পাক প্রভু, যারা প্রভুগো চিন্তিত তাদের জীবনে শান্তি আসুক পিতা। কারণ কি তুমি নামে, তোমার নামে আমরা পেয়েছি আর পাবো। পাস্টার সরিতাকে তুমি আজকে ব্যবহার করো তোমার বাক্যর দ্বারা, যেন এই বাক্য তাদের অন্তরে, প্রত্যেকের অন্তরে গাঁথতে পারে, আর আমরাও ব্যক্তিগতভাবে আশীর্বাদ হতে পারি। শয়তান পরাস্ত, যিশুর নামে আমরা জয়ী। এই প্রার্থনা যিশুর নামে চাই, আমেন। Amen.
প্রেজ দ্য লর্ড। জয় যিশু সবাইকে। আমরা জানি পরিস্থিতি খুবই খারাপ, ভারতবর্ষে এত মৃত্যু ঘটছে, করোনা ভাইরাসের থার্ড ওয়েভ অ্যান্টিসিপেটেড আছে কি যখন তখন থার্ড ওয়েভ আমাদেরকে আঘাত করতে পারে আর সেটা আরও নাকি সংক্রামিত হবে। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়তে ঈশ্বর আমাদেরকে একটা সূচনা দিচ্ছে, একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে। আর এই ওয়ার্নিংটা যারা শুনবে, নিজেকে সুশোধন করবে, তারা বেঁচে যাবে। কিন্তু যারা এখনও খুব কেয়ারলেসভাবে প্রভুর সাথে হাঁটছে, আপনাদের জন্য সাবধানের আজকে বাক্য নিয়ে এসেছি। আমি পুরো বাক্যটা বাংলাতে বলতে পারবো না, আমি হিন্দিতেই বলবো আর চেষ্টা করব মাঝে মাঝে বাংলাতে বলার, যেন আপনি সব বাক্যগুলো সবাই বুঝতে পারে। আজকে যে শীর্ষক আছে, সোল दैट सिन विल डाई, जो आत्मा पाप करेगा वो मरेगा, যে আত্মা পাপ করবে সে শেষ হয়ে যাবে। আমরা এজিকিয়েলের পুস্তক থেকে দেখব, এজিকিয়েল 18:20-32 আমরা পড়ব। ওইখানে ঈশ্বর কি বলছে। করোনা ভাইরাসকে খুব হালকা একটা রোগ নেবেন না। আমরা প্রথম দিন থেকে ইউটিউবেও বলেছি, চার্চেও বলেছি, করোনা ভাইরাস আছে ঈশ্বরের ওয়ার্নিং। সে আমাদেরকে কিন্তু ওয়ার্নিং দিচ্ছে। আর যারা ওয়ার্নিংটাকে ঠিকভাবে গ্রহণ করে নিজেকে সুশোধিত করে নেবে, তার উপরে কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় পড়বে না, সে বাঁচিয়ে নেওয়া হবে। আসুন আমি আপনাদের এক এক করে বাক্য পড়ে দিই। एजिकियल 18:20, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपना ही धर्म का फल और दुष्टों को अपना ही दुष्टता का फल मिलेगा। अर्थात जो प्राणी पाप करता है उसी को सज़ा मिलेगा। अगर पिता पाप करता है तो पिता को सज़ा मिलेगा, अगर पुत्र पाप करता है तो पुत्र को सज़ा मिलेगा। अच्छा व्यक्ति अपनी अच्छाई का फल खाएगा, दुष्ट व्यक्ति अपने दुष्टता का फल खाएगा। उसके बाद हम 21 में आते हैं, 21। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वो ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। यदि दुष्टरा निजे पाप थेके मन फिराय और आमार विधि विधानेर অনুযায়ী হাঁটে, ধর্মে কাজ করে, ধর্মে মানে শুধু ধার্মিক কাজ নয়, অনুতাপিত হয়ে ঈশ্বরের মধ্যে পবিত্র জীবন যাপন করে, তাহলে সে মরবে না বরং সে জীবিত থাকবে। অর্থাৎ ঈশ্বর অনুতাপে ডাকছে। 22 কি বলে, उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वो जीवित रहेगा। আমরা এখানে বাক্যতে এটাই দেখছি যে পাপ করবে সে মরবে, কিন্তু যে নিজে মন পরিবর্তিত করে নেবে, যে ধার্মিকভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে হাঁটবে, তার কিন্তু মৃত্যু ঘটবে না, তার উপরে ন্যায় আসবে না, তার বিচার হবে না। यहाँ साफ लिखा है, जितने अपराध किए हो, अर्थात जिसने अपराध किया है वो सारे अपराध परमेश्वर उसके विरुद्ध याद नहीं करेगा। जैसे ही वो व्यक्ति अनुताप करता है, वो अपने पापों को कबूल करता है, स्वीकार करता है, परमेश्वर उसके सारे पापों को भूल जाएगा और जो धर्म का काम उसने किया हो उसके करने से वो जीवित रहेगा। अर्थात जो व्यक्ति पाप करता और पाप में ही चलता चला जाता है, पाप से अपने मन को नहीं फिराता, अपने दुष्टता के कामों को वो छोड़ता नहीं, उस पर मृत्यु आएगा। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति समझता है कि हाँ मैंने गलती की है, मुझसे पाप हुआ है और वो अनुताप करता है, परमेश्वर उसका एक भी पाप याद नहीं रखेगा, परमेश्वर उसे उसी समय क्षमा कर देगा। 23 क्या कहता है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे?
ईश्वर क्या कह रहा है कि जब एक दुष्ट मरता है, जब एक पापी मरता है, तो क्या सचमुच परमेश्वर खुश होता है? नहीं मेरे प्रियो। जब कोई पापी पाप में मर जाता है, ईश्वर कभी नहीं खुश होता, उसे कभी आनंद नहीं मिलता। अगर आपको याद होगा उस उड़ाऊ पुत्र का, उसने अपने पिता की सारी अपने हिस्से की संपत्ति लेकर वो पिता के घर को छोड़कर चला गया। पाप में उसने सारा धन लुटा दिया, लेकिन जब वो पाप में गिर चुका था, हर धन को वो खो चुका था, वो सुअरों को चला रहा था, उसके बाद उसे अपने पिता के घर की याद आई और उसने अपने पिता से कहा कि तू मुझे नौकर के रूप में रख ले। पिता ने क्या किया? पिता ने उसकी सारी गलती माफ की, 2 हाथ फैलाकर उसे बेटे का स्थान दिया, उसे बैगनी वस्त्र पहनाया और अपने पास बिठाया। यह है पिता का हृदय, क्षमा का हृदय। पिता हमेशा इंतजार करता है कि एक दुष्ट अपनी दुष्टता से मन फिराकर लौट आए। पिता को सजा देने में आनंद नहीं मिलता। He is not the God to punish you, but he is a God who waits for your repentance. वो खुदा है जो इंतजार करता है उसका बच्चा कब अनुताप करके उसके पार लौट आए। आपका पाप कोयले जैसा भी काला क्यों ना हो, उसका लहू उसे धोकर शुद्ध कर सकता है, हिम के समान, बर्फ के समान सफेद कर सकता है। अर्थात यहाँ साफ लिखा है एजिकल 18:23 कि मैं सजा देने में खुश नहीं होता, मैं तो इंतजार करता हूँ कि वो कब अपने मन को फिराए और वो बचा लिया जाए। 24 क्या कहता है? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर टेढ़े काम करे। अब तक तो हम सुन रहे थे कि जब दुष्ट दुष्टता में चलेगा तो वो विनाश होगा, और अगर दुष्ट अपना मन फिराएगा तो बचा लिया जाएगा। अब ये नेक्स्ट वार्निंग धार्मिकों के लिए है। परंतु अगर धर्मी अपने धर्म से फिर कर टेढ़ा काम करे, वरन दुष्ट से सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वो जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वो मर जाएगा। अर्थात যেমন দুষ্টদের ঈশ্বর অপেক্ষা করছে তারা নিজে মন ফিরাবে, সেইভাবে ঈশ্বর ধার্মিকদেরকেও ওয়ার্নিং দিচ্ছে। তুমি যদি ধার্মিকভাবে হেঁটেছো কিন্তু এইবার তুমি দুষ্টতাতে পড়েছো, এইবার তুমি মন্দ কার্য করছো, এইবার তুমি তোমার ধর্ম ভুলে গেছো, তোমার বিশ্বাস ভুলে গেছো, তোমার পবিত্রতার পথ থেকে তুমি সরে গেছো, তাহলে মৃত্যু তোমার উপরে আসবে। আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত ধার্মিকভাবে হাঁটতে হবে। আর আমি ইউটিউব ভিডিওতে অলরেডি বুঝিয়ে দিয়েছি ধার্মিক কাকে বলা হয়। আপনার ভালো কার্য আপনাকে ধার্মিক করতে পারে না, আপনার ধার্মিক বিধি বিধান আপনাকে ধার্মিক বানাতে পারে না। আপনার বিশ্বাস আর বাধ্যতাই আপনাকে ধার্মিক করে। যখন আপনার সমস্ত রংকে আপনি রাইট করেন তখনই আপনি কিন্তু ধার্মিক হন। যখন আপনার ভিতরে ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বরের চরিত্র গঠন হয় তখনই কিন্তু আপনি धार्मिक हन। अर्थात परमेश्वर उन्हें धार्मिक बुलाता है जो ईश्वर की आज्ञाकारिता में चलता है। जैसे हमने देखा कि दुष्ट जब दुष्टता से मन फिराता है खुदा उसे माफ करता है, एक भी गलती वो याद नहीं रखता। उसी प्रकार से जब एक धार्मिक पाप में गिरता है पिता उसकी सारी धार्मिकता को भूल जाता है और उसे क्या कहा है, उसके कारण वो मर जाएगा। 25 हम पढ़ते हैं। तो अभी तुम लोग कहते हो कि प्रभु की गति एक सी नहीं है। इस्राएल के घराने देख, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं? अर्थात हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं। हम परमेश्वर से कहते हैं तू सही नहीं, तू न्यायी नहीं, तू ठीक से न्याय नहीं करता। देख मैंने तेरे लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए, तो फिर तू मेरी ये गलती के कारण मुझे सजा क्यों देता है?
मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र है, इसे इसलिए हमें भी पवित्र बनना है। मान लीजिए आपने अनुताप किया, यीशु को ग्रहण किया, आप बहुत अच्छा चल रहे थे, लेकिन अचानक से आप वहां से गिर गए, आप पवित्रता से गिर गए, आप व्यभिचार में पाए गए, आप चोरी में पाए गए, या झूठ बोलने लगे, या अश्लील स्वभाव में गिर गए, या जो भी पाप में आप जकड़ गए, आप कैसे आशा करते हैं कि आप स्वर्ग राज्य की अधिकारी होंगे? अभी भी अनुग्रह है। जब एक धार्मिक गिरता है, उसे माफी मांगना है, उसे अनुताप करना है। बाइबल कहता है एक धार्मिक 7 बार गिरेगा, 7 बार खड़ा हो जाएगा। दुष्ट 1 बार गिरेगा, कभी नहीं खड़ा होने के लिए। अगर आप खुद को धार्मिक पुकार रहे हैं, क्या आपने अनुताप किया? क्या आपने क्षमा मांगा? क्या आपने अपने मन को फिराया? एक धार्मिक जब गिरता है, मत सोचे वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। बाइबल साफ कहता है वो मर जाएगा। अभी अनुग्रह है, इस अनुग्रह का आप लाभ उठाए, पिता के पास लौट आए। जैसे उस उड़ाऊ पुत्र ने पिता को याद किया और उसके पास वो लौट आया और उसे क्षमा मिला। आप भी लौट आए, पापों के लिए माफी मांगे, अनुताप करे, परमेश्वर को दोष ना लगाए, उन अतीत की बातों को याद ना करे कि आप कितने अच्छे थे प्रभु में। क्या आज आप अच्छे हैं? क्या आज आप पवित्र हैं? क्या आज आप सही तरीके से चल रहे हैं? अगर आज आप सही नहीं चल रहे, अतीत के लिए आज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आज आपको सही चलना है और अंत तक सही चलना है। जब तक यीशु हमें लेने नहीं आता, तब तक हमें सही चलना है परमेश्वर के संग। अब हम थोड़ा आगे पढ़ते, 26 पढ़ते हैं। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़ा काम करने लगे, तो वो उसके कारण मरेगा, अर्थात वो अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। बाइबल साफ कहता है, आपने अतीत में जो भी पवित्रता किया, आपने अतीत में जो भी आज्ञाकारिता किया, उसका मतलब ये नहीं कि आज भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, आज भी आप धार्मिक कहलाए जाएंगे। नहीं मेरे दोस्तों, भ्रमित ना रहे, शैतान के झूठ में ना फंसे। आपको आज भी पवित्र रहना है। आपके अतीत की पवित्रता के कारण आज आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपके वर्तमान के पवित्रता के कारण आपका भविष्य आशीर्वादित रहेगा। अर्थात प्रत्येक दिन हमें पवित्र चलना है, प्रत्येक दिन हमें परमेश्वर के आज्ञाकारिता में जीना है, प्रत्येक दिन हमें यीशु के संग, उसके चरित्र, उसके गुण में एक होकर चलना है। यहाँ साफ कहा जाता, मैं फिर से पढ़ती हूँ, जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे, तो वो उनके कारण मरेगा। যখন সে ভুল কার্য করে, নিজে ভুল কার্যের জন্য একটা ধার্মিক মরে যাবে। অর্থাৎ ওর বাঁকা টেরা কাজেরই জন্য ওর উপরে মৃত্যুর শাস্তি আসবে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তাকে ঠিকভাবে হাঁটতে হবে। আপনার অতীতের পবিত্রতার জন্য আপনার বর্তমান আশীর্বাদিত হতে পারে না। আপনাকে বর্তমানও পবিত্র থাকতে হবে, বাধ্যতাতে থাকতে হবে। বরং বাক্য বলে আমাদের শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের ভয়ের মধ্যে নিজে উদ্ধারের কার্য করতে হবে। এবার আমরা 27 দেখি। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट काम से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वो अपना प्राण बचाएगा। अर्थात जब दुष्ट अपने दुष्टों के काम से फिर जाता है और धर्म के काम करने लगता है, न्याय के काम करने लगता है, वो अपना प्राण बचा लेगा। नेक्स्ट वर्स 28। वो जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण ना मरेगा, जीवित ही रहेगा। যখন আপনি চিন্তা ভাবনা করবেন, যখন আপনি বুঝবেন আপনার ভিতরে পাপকে আপনি জানার চেষ্টা করবেন, আর যখন আপনার মনকে আপনি ফেরাবেন, আপনি বেঁচে যাবেন। जो आदमी अपने अंदर चिंता भावना करता है, अपने अंदर के पाप को खोजता है,
और जब उन पापों को वो स्वीकार करता, अंगीकार करता है और मन फिराता है, वो बचा लिया जाता है। प्रत्येक दिन जब मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ, सबसे पहले मैं पवित्र आत्मा से पूछती हूँ, मेरे अंदर के मनुष्य को मुझे दिखा, मुझसे बातें कर पवित्र आत्मा, मैं कहाँ गलत हूँ, क्या चीज़ है जो मेरे अंदर अभी भी बदलना बाकी है, मेरा जो ब्लाइंड स्पॉट है, मेरा जो ग्रे एरिया है जिसे मैं देख नहीं सकती, आप मुझे दिखाए, उस जगह को तोड़िए, मुझे अनुताप दीजिए ताकि मैं परिवर्तित हो सकूं और यीशु के स्वरूप में ढल सकूं। क्या प्रत्येक दिन आप अपने अंदर के मनुष्य को देखते हैं? ना आप दूसरों की ओर उंगली उठाते हैं और उन्हें दोष लगाते हैं। अपने अंदर को देखें, अपने अंदर को जांचें, अपने अंदर के पाप को खोजें, आप बचा लिए जाएंगे। नेक्स्ट वर्स। तो भी इज़राइल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं है। इज़राइल के घराना, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित है? और 30 क्या कहता है? प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराना, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने के कारण ना होगा। अर्थात ईश्वर क्या कह रहा है? तुम जिस तरीके से चलते हो, तुम्हारे चाल चलन के अनुसार मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। इसलिए तुम क्या करो? पश्चाताप करो, अनुताप करो, अपने अपराधों को छोड़ दो, तुम अपने पाप को छोड़ दो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण नहीं बनेगा। इसलिए तुम्हारा पाप तुम्हारे गिरने का कारण नहीं बनेगा। 31 क्या कहता है? अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपने मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? ईश्वर क्या कह रहा है? निजे अपराध, তুমি তোমার পাপ, তুমি তোমার সমস্ত ভুলকে দূর করে দাও, তুমি তোমার মন, তোমার আত্মাকে পরিবর্তিত করো, নতুন করো। তুমি কেন মরবে? ঈশ্বর বলছে তুমি কেন মরবে? আমি চাই না তুমি মরে যাও, তুমি কেন মরবে? 32 क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। ईश्वर की बोलছে আমি চাই না তুমি মরে যাও, আমি খুশি নয় তোমার মৃত্যু দেখে, আমি চাই তুমি অনুতাপ করো আর বেঁচে যাও। इंग्लिश বলে repent and live। मेरे प्रियो, अनुताप करो और बच जाओ। मैं 5 चीज़ यहाँ से बोलना चाहती हूँ। हम लोग 30 से फिर देखेंगे। 30 में ईश्वर क्या कहता है? रिपेंट, अनुताप करो। ईश्वर की क्या वाणी है? तुम अनुताप करो, तुम पश्चाताप करो, तुम अपने अपराधों को छोड़ दो। ईश्वर हमें अनुताप करने को कह रहा है। रिपेंटेंस क्या है? रिपेंटेंस है 180 डिग्री चेंज ऑफ डायरेक्शन टूवर्ड्स गॉड। मान लीजिए आप ऐसे हैं, आपको घूमकर बिल्कुल यीशु की ओर ऐसे मुड़ जाना, 180 डिग्री चेंज करना है। रिपेंटेंस क्या है? इट्स अ इनवर्ड चेंज दैट रिफ्लेक्ट्स आउटसाइड। आप अंदर से बदलते हो और ये आपके बाहर दिखता है। अर्थात पहला ईश्वर कह रहा है रिपेंट। फिर 31 में ईश्वर कह रहा है टर्न अवे फ्रॉम ऑल योर ऑफेंसेस, देन सिन विल नॉट बी द रीजन फॉर योर डाउनफॉल। इसलिए तुम अपने सारे पापों से मुड़ जाओ, बिल्कुल मुड़ जाओ, ताकि ये पाप तुम्हारे गिरने कारण नहीं बनेगा। और तीसरा ईश्वर क्या कह रहा है? rid yourself, छुटकारा पाओ, तुम अपने पाप से छुटकारा पाओ। पहले अनुताप करो, मुड़ जाओ, अब तुम छुटकारा पाओ। rid yourself from the sin। जब तुम छुटकारा पाओगे तुम्हें क्या मिलेगा? You will get a new heart, नया दिल मिलेगा। और दूसरा क्या मिलेगा? You will get a new spirit, तुम्हें नया आत्मा मिलेगा।
और आखिरी में कहा जाता है रिपेंट एंड लिव, पश्चाताप करो और तुम बचा लिए जाओगे। मैं 5 स्टेप आपको सिखाना चाहती हूँ अनुताप के लिए। पहला स्टेप है एक्नॉलेज द सिन। पहला आपको पहचानना है कि आपके अंदर पाप है। अगर आप पहचानेंगे नहीं कि आपके अंदर पाप है, आप अनुताप भी नहीं करेंगे। आपको पहचानना है कि हाँ मेरे अंदर गलती है, हाँ मैंने गलत किया है। जब इस बात को आप एक्नॉलेज करेंगे, सहराएंगे, पहचानेंगे, तो तभी तो आप रिपेंट करेंगे। दूसरा स्टेप कन्फेस योर सिन। अब आपको अंगीकार करना है, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया। तीसरा है आस्क फॉरगिवनेस। आपको क्षमा मांगना है, पिता मैं स्वीकार करता हूँ मैंने पाप किया, मेरे अंदर पाप है, तू मुझे क्षमा कर। चौथा पॉइंट टर्निंग अवे फ्रॉम द सिन, 180 डिग्री मुड़ जाना, उस पाप से बिल्कुल मुंह घुमा लेना। और आखिरी है रेस्टोर द रॉन्ग डन। जो आपने गलत किया है उसको लेकिन आपको सही करना है। सिर्फ गॉड को सॉरी बोल के नहीं होता, आपको मनुष्य को भी सॉरी बोलना है। उस स्थिति को आपको सही करना है। जो भी गलती आपके लाइफ से हुआ है उसे आपको सुधारना है, अर्थात अपने रॉन्ग को राइट करना है। मैं आपको दाऊद के जीवन से एक प्रार्थना सिखाना चाहती हूँ, जो है साम 51, भजन संहिता 51, 1 से 12 हम देखते हैं। जब बैतशेबा को देखकर दाऊद के मन में पाप आता है, वो नहा रही थी छत पे और दाऊद के मन में पाप आता है और उसे हासिल करने के लिए उसके पति उराया का वो खून कराता है और बैतशेबा के संग वो गलत संबंध करता है, शारीरिक संबंध करता है, व्यभिचार करता है। और उसका क्या होता है, वो धार्मिक था लेकिन पाप के कारण वो गिर जाता है। और तब वो अनुताप से भरकर उसने ये प्रार्थना किया। मैं ये प्रार्थना आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अर्थात ঈশ্বর তুমি অনুগ্রহ দেখাও, তোমার দয়ার অনুযায়ী তুমি আমার পাপকে মুছে দাও। নেক্সট, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। अर्थात ईश्वर आमार अधार्मिकता के तुमी धुए परिष्कार करो, तुमी आमार पाप थेके आमाके शुद्ध करो। 3, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। ईश्वर आमी जानी, एक्नॉलेज, ईश्वर आमी जानी आमी पापी और आमी निरंतर आमार पाप के आमार चोखे मध्य देखते पारी। যদি আপনি আপনার পাপকে না দেখতে পারেন, আপনি কোনোদিন অনুতাপ করবেন না। দাউদ বলছে ঈশ্বর নিরন্তর আমার পাপ আমার চোখে আছে, আমি তাকে দেখতে পারি, এই পাপটা আমি বুঝতে পারি আমার মধ্যে আছে। তারপরে কি বলে 4, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। अर्थात ईश्वर যদি আমি পাপ করেছি, তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি, কেন ঈশ্বর অতি পবিত্র। আর যখন আমরা ভুল করি আমরা তার পবিত্রতার স্ট্যান্ডার্ড থেকে পড়ে যাই। আর যখন ঈশ্বর আঙ্গুল দিয়ে আমাদের দিকে বলে তুই ভুল করেছিস, ঈশ্বর সবসময় কি হয়, নিষ্কলঙ্ক থাকবে। আমরা কোনোদিন ঈশ্বরকে দোষ দিতে পারি না কি ঈশ্বর তুমি ভুল বিচার করছো, ঈশ্বর তুমি ঠিক করছো না। এটা আমরা আরও পাপ নিজের জীবনে জমা করে নেব। ঈশ্বর সবসময় ঠিক, ঈশ্বর সবসময় ঠিক বিচার করে। You must acknowledge that I am sinful. Next, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अर्थात हमार जन्मই तो पापे হয়েছে, मैं तो जन्म ही लिया हूँ पाप में, इसलिए तो पाप हमारे अंदर पाया जाता है। 6, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाता है। अर्थात ईश्वर हमारे मने सत्यता देखे खुशी হয়, ईश्वर हमारे ज्ञान और बुद्धि দেয়। 7,
जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊं, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊं। अर्थात ईश्वर তোমার রক্ত দ্বারা আমাকে শুচি শুদ্ধ করে দাও, আমি হিমের মতন বরফের মতন সাদা হয়ে যাব, পরিষ্কার হয়ে যাব। নয়, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा दाल। ঈশ্বর তুমি আমার পাপকে তুমি ভুলে যাও, আমার সমস্ত আধার্মিক কার্যকে তুমি মুছে দাও। 10 हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अर्थात हे ईश्वर তুমি আমাকে নতুন আত্মা দাও, তুমি আমাকে নতুন হৃদয় দাও, যেটা আমি এজেকিয়েল থেকে শেখালাম। 11 मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और मेरे अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर दे। ईश्वर তোমার উপস্থিতি থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না, তোমার পবিত্র আত্মা আমার ভিতর থেকে নিয়ে নিও না। আপনি কি জানেন আপনি পবিত্র আত্মা হারিয়ে দিতে পারেন? আপনি কি জানেন আপনি পবিত্র আত্মা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন? হতে পারে প্রথম খুব ভালো হাঁটলেন, তারপরে পাপে পড়লেন, ব্যভিচারে পড়লেন, মিথ্যাতা পড়লেন, অহংকারে পড়ে গেলেন, লোভে পড়লেন, আপনি পবিত্র আত্মা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। হতে পারে একসময় আপনি ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু হতে পারে আজকে আপনি নয়। আপনি আপনার বিশ্বাসের স্তর থেকে পড়ে গেছেন, আপনার পবিত্রতার মান থেকে পড়ে গেছেন। আজকে যদি দাউদের মতন অনুতাপ করবেন, ক্ষমা চাইবেন, ঈশ্বর নিশ্চয় আপনাকে রেস্টোর করবেন, পুনর্নির্মাণ করবেন। 12 কি বলে? अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। अर्थात गिव मी द जॉय ऑफ सैल्वेशन। ईश्वर तुम्हार उद्धारेर आनंद আমাকে দাও, আমাকে তুমি বাঁচিয়ে নাও। এখানে আমরা আবার ওই 5টা স্টেপ দেখি। প্রথমে কি বলে দাউদ? আই অ্যাকনলেজ মাই ট্রান্সগ্রেশন। ঈশ্বর আমি আমার পাপকে স্বীকার করি, কেন আমার দৃষ্টিতে আমার পাপ রয়েছে। দ্বিতীয় সে বলে ঈশ্বর শুধু তোমার বিরুদ্ধে আমি পাপ করেছি, অর্থাৎ সে অঙ্গীকার করে। তৃতীয় সে বলে কি ঈশ্বর আমি অনেক পাপ করেছি, কিন্তু তোমার দয়া আমার পাপকে মুছে দিতে পারে। তারপরে চতুর্থ কি বলে ও? ঈশ্বর তুমি তোমার আত্মাতে আমাকে ভরে দাও। মেক মি হিয়ার দ্য জয় অ্যান্ড গ্ল্যাডনেস দ্যাট দ্য বোনস ইউ হ্যাভ ব্রোকেন মে রিজয়েস। অর্থাৎ আমাকে পাপ থেকে ফিরিয়ে দাও, আমি পাপ থেকে ফিরে যেতে চাই, অর্থাৎ ইউ টার্ন 180 ডিগ্রি টার্ন নিতে চাই। আর লাস্ট রেস্টোর ইনটু মি দ্য জয় অফ স্যালভেশন। অর্থাৎ যেগুলো ভুল হয়েছে সেগুলোকে ঠিক করে দাও। क्या आप समझते हैं कि आपके अंदर पाप है? क्या आपने पवित्र आत्मा के सामने अंगीकार किया? क्या आपने क्षमा मांगा? क्या आप 180 डिग्री उस पाप से मुड़े और जो भी आपने गलत किया क्या आपने उसे ठीक किया? अगर आपने नहीं किया, आपके अतीत के धार्मिकता के कारण आज आप नहीं बचाए जाएंगे। जब एक धार्मिक पाप करता है उस पर मृत्यु आता है, जब एक दुष्ट पाप करता है उस पर भी मृत्यु आता है, लेकिन जब एक दुष्ट अपने पापों से फिरता है वो बचा लिया जाता है। आपके अतीत का धार्मिकता आपको वर्तमान में धार्मिक नहीं बना सकता। आपके पिता धार्मिक थे इसलिए बेटा धार्मिक नहीं रहेगा। पिता को पिता का धार्मिकता का आशीर्वाद मिलेगा, बेटा को बेटा का। इट इज नॉन ट्रांसफरेबल। The soul that sin shall die. जो आत्मा पाप करेगा वो मरेगा। अतीत में आप क्या थे is not important. वर्तमान में आप क्या है that is important. आज आप क्या है that is important. Are you ready? क्या आप तैयार है? अगर आज यीशु आए उसके संग जाने के लिए तैयार है? 2020 में तो आपने तैयारी की थी, 2021 में क्या आप तैयार है? आज के डेट में क्या आप तैयार है? आज इस रविवार में क्या आप धार्मिक को में गिने जाते हैं? क्या आप सही चल रहे यीशु के संग? खुद से पूछिए। मैं फिर से दोहराती हूँ, जो आत्मा पाप करेगा मर जाएगा। खुदा कह रहा रिपेंट एंड लिव, अनुताप कर और बच जा। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे दयालु प्रभु यीशु,
मेरे जीवित सच्चे खुदा, मेरे धार्मिक परमेश्वर, सच्चाई का परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर भ्रमित आत्मा तेरे मंडली को छोड़कर पाताल चला जाए। अनुताप खोलती हूँ, एहसास खोलती हूँ, वो आत्मिक आंख खोलती हूँ कि लोग अपने दृष्टि में अपने पाप को देखने लगे। जैसे दाऊद ने कहा, मेरी आंखों में मेरा पाप निरंतर उभर रहा है और मैं उसे देख सक रहा हूँ। उसने अंगीकार किया कि वो पापी है, उसने क्षमा मांगा, उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर अपने उद्धार का आनंद और पवित्र आत्मा मुझसे लेना लेना। उसने कहा, अगर मैंने पाप किया है खुदा, तेरे विरुद्ध किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे मेरे उद्धार का आनंद लौटा दे, मैं अपनी हर गलती सुधारना चाहता हूँ। खुदा, जो अब इस समय ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ जो स्वर्ग से उनके सारे अपराध क्षमा कर रहा है। उनके पापों को तू हिम के समान अपने पवित्र लहू से धोकर श्वेत बना रहा है। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आप उनके अधार्मिकता को भूल जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ पिता, जो अनुताप करेगा वो बचा लिया जाएगा, लेकिन जो दुष्टता में जिएगा वो मर जाएगा। यहाँ तक कि धार्मिक भी अगर तेरा मेरा चाल चलने लगे, गलतियों पे गलती करने लगे, पाप में ही जीने लगे और अपने पाप को देखे नहीं, समझे नहीं, अनुताप ना करे, वो भी मर जाएगा। हर भ्रम टूट यीशु नाम से, हर झूठ मंडली को छोड़ यीशु नाम से, हर छलना की आत्मा मैं तुझे घुड़कती यीशु के नाम से, झूठ तेरी आधी पतन की घोषणा करती यीशु नाम से, सच्चाई खोलती हूँ जो तेरे लोगों को आजाद करता है, अनुताप खोलती जो तेरे लोगों को बचा लेता है, प्रार्थना करती, मध्यस्थर करती हूँ और एक एक के पापों के लिए मैं स्वीकार करके तुझसे माफी मांगती हूँ। बंधन, जकड़न, झूठ तोड़ देती यीशु नाम से, छलना की आत्मा, भ्रमित आत्मा बांध देती हूँ यीशु नाम से। प्रार्थना करती हूँ लोग अपने आप को बदल ले, दाऊद के समान अनुताप करे और बचा लिए जाए। खुदा, तेरा आना बड़ा सन्निकट है, तो शीघ्र ही आने वाला है, शायद इसी साल आने वाला है। होने दे तेरे बच्चे लापरवाही से ना चले, बल्कि जागृत हो जाए, संभल जाए, अपने पापों से छुटकारा पाए, अपने मुंह को मोड़ ले, अनुतापी जीवन जिए और बचा लिए जाए। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग सभी को धन्यवाद हम देने चाहते हैं। प्रभु सभी को आशीष दें। फिर से मैं कुछ सूचनाओं को मैं बताने वाला हूँ। যখন আমি প্রথমে শুরু করেছিলাম অনেকেই ছিল না। মনে রাখবেন, আমরা এই লকডাউনের সময় প্রত্যেক রবিবার দিন সকাল 10টার সময় ফেসবুক লাইভ আসবো। আর সেই জন্যে আপনারা দয়া করে ফেসবুকের সঙ্গে আমাদের জুড়বেন, কমেন্ট লিখতে পারেন। আর পাস্টাররা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। আর প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিন 8টার সময় দুর্গাপুর, পাণ্ডবেশ্বর, শক্তিগড় আর মেমারির বিশ্বাসী ভাই বোনেরা আপনাদেরকে বলতে চাই, আপনাদেরকে পাস্টার সরিতা আমোসের বই থেকে পড়াবে, শেখাবে। আর আমোস আজকে যে জীবনে ঘটনা ঘটছে চারিপাশে, এর বিষয়ে আগে হতে ভবিষ্যবাণী করে দিয়েছিল। আর সেই জন্য এই বিষয়গুলোকে আরও যদি বিস্তারিত জানতে চান, নিজেকে প্রস্তুত করতে চান, এই জুম মিটিং কেবলমাত্র ড্রিম টিমের জন্য নয়, প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য। লিঙ্ক আপনাদেরকে শেয়ার করা হবে, রেসপেক্টিভ লোকাল পাস্টার আপনাদেরকে দেবে, ড্রিম টিম লিডার আপনারা যাদের বাড়িতে যায় তারাও আপনাদের কাছে পাঠাবে। দয়া করে যুক্ত হবেন। আর শুক্রবার দিন 8টার সময় জুম মিটিংয়ের দ্বারা এই আমোসের পুস্তকেই শিক্ষা দেওয়া হবে বর্ধমান, উখড়া আর লাউদোয়া চার্চের বিশ্বাসী ভাই বোনেরা। কেবলমাত্র ড্রিম টিম নয়, এখন আমরা সবার জন্য খুলে দিয়েছি। সেই জন্য দয়া করে আপনারা যোগদান করবেন। আর একটা বিষয় সূচনা আপনাদেরকে জানাতে চাই যে লকডাউন হয়তো হয়ে রয়েছে, কিন্তু পাস্টাররা নিজেদের কাজ করছে। আর ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে বলে, যারা আমরা আমাদের উত্তম ভেট দশমাংশকে আমরা প্রভুর গৃহতে নিয়ে আসি আর আমরা আশীর্বাদ যেন পেতে পারি। আর সেই জন্যেই আপনারা আপনাদের পাস্টার, আপনাদের লিডারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। আর অনেকে অ্যাকাউন্টে দিতে চাই বা গুগল পেতে দিতে চাই, পেটিএম করতে চাই বা ফোনপে দিতে চাই,
তাদের জন্যে আপনারা আপনাদের লোকাল পাস্টরদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তারা আপনাদেরকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দেবে কেমন করে আপনারা আপনাদের দশমাংশ আর ভেটকে আপনারা পাঠাবেন। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সূচনা আপনাদেরকে জানাতে চাই। বহু মানুষ আমাকে ফোন করছে আমাদের চার্চের থেকে, বাইরে থেকে, যে পাস্টার এই সময় আমার শ্বশুরের করোনা হয়েছে বা শাশুড়ির করোনা হয়েছে, কলকাতায় থাকে, তারা পাড়া প্রতিবেশীর কেউ আসছে না, ডাক্তারের কাছে কি করে যাবে, বয়স্ক রোগী। আপনাদের জন্য একটা সুখবর যে কাল থেকে আমাদের অনলাইন ডাক্তার সার্ভিস শুরু হয়ে যাবে। আপনাদেরকে আমি খুব শীঘ্রই এই তাদের ফোন নাম্বার, আমাদের ক্লিনিকের ফোন নাম্বার যারা জানেন আপনার ক্লিনিকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আর যত গ্রুপের সঙ্গে আমি যুক্ত রয়েছি সেই গ্রুপে এই পরিষেবার কেমন করে পেতে পারেন সেই ফোন নাম্বার দেওয়া রয়েছে। আপনারা ফোনেতে লাইভ ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পারেন। আর আপনাদের প্রেসক্রিপশনস কি হবে, ওষুধ কি হবে, সেই ডাক্তার আপনাদেরকে বলে দেবে। চিন্তার কারো কারণ নেই। প্রার্থনায় যুক্ত থাকুন, প্রভুর সঙ্গে এক হয়ে থাকুন, আর সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, এইটাই আমাদের প্রার্থনা। প্রভু আপনাদেরকে আশীর্বাদ করুক। গড ব্লেস ইউ। আমি অন্তিম প্রার্থনায় যাব। এই সময় প্রভু যিশুর অনুগ্রহ, পিতার প্রেম আর পবিত্র আত্মার সহভাগিতা প্রত্যেক খ্রিস্ট ভাই বোনেদের সঙ্গে চিরন্তর থাকুক। আর আমরা সবাই বলি অনুগ্রহ পরিবার, আমেন, আমেন। জয় যিশু। ভালো জয় থাকবেন। যিশু।